Hello, listening friend, and thank you again for tuning in to this broadcast. नमस्कार श्रोता मित्रों, और इस प्रसारण में सम्मिलित होने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। In this series of messages, I am sharing 15 secrets of positive living from 2 Corinthians. इस संदेश श्रृंखला में मैं कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में से सकारात्मक जीवन जीने के 15 रहस्यों पर बात कर रहा हूँ। And I sincerely hope that they have been a blessing to you. और मैं दिल से ये आशा करता हूँ कि ये आपके लिए एक आशीष सिद्ध हुए हों। Let me review them quickly with you. मैं जल्दी से एक बार इनकी समीक्षा कर देता हूँ। Number 1 नंबर 1 is the practice of the inflow-outflow equation of God's blessings on our lives. ये आपके जीवन पर परमेश्वर की आशीषों के अंदर बाहर के प्रवाह के समीकरण का अभ्यास है। Number 2 नंबर 2 is the claiming of the priceless deposit of Christ's sacrifice for us. हमारे लिए मसीह के बलिदान की पेशगी अदायगी का दावा करना। Number 3 नंबर 3 is the giving and receiving of forgiveness. क्षमा करना और क्षमा प्राप्त करना। Number 4, नंबर 4 the overcoming of timidity. कायरता पर विजय पाना। Today I want to share with you the 5th secret. आज मैं आपके साथ 5वां रहस्य बांटना चाहता हूँ। There is a popular legend in the United States. अमेरिका में एक प्रसिद्ध पुरानी लोक कथा है। It's about a natural spring that is supposed to restore the youth of whoever drinks of that water. ये पानी के एक प्राकृतिक सोते के बारे में है कि जो कोई इसका पानी पिएगा उसकी जवानी वापस आ जाएगी। The spring is called the Fountain of Youth. इस सोते का नाम है जवानी का सोता। This is a long-standing myth about the Spanish explorer Juan Ponce de Leon. ये एक स्पेनी खोजी के बारे में पुरानी दंत कथा है जिसका नाम था जुआन पोंस डी लियोन। He supposedly was searching for the Fountain of Youth in 1513. कहा जाता है कि सन 1513 में वो जवानी के सोते की खोज कर रहा था। And he ended up in the state of Florida in the United States. और वो अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में आ पहुंचा। But this myth did not begin with Ponce de Leon. परंतु ये दंत कथा पोंस डी लियोन से प्रारंभ नहीं हुई। It is much, much older than that. ये उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। Alexander the Great and his servants supposedly crossed the land of darkness to find restoring springs. कहा जाता है कि सिकंदर महान और उसके दास पुनः बहाली के सोतों की तलाश में अंधकार की धरती से होकर गुजरे। Today, many advertisers of beauty products promise that you can have a fountain of youth. आज बहुत सारे सुंदरता उत्पादों के विज्ञापन देने वाले ये दावा करते हैं कि आप जवानी का सोता प्राप्त कर सकते हैं। But the Bible speaks about the real fountain of youth. परंतु बाइबल जवानी के एक असली सोते के बारे में बताती है। A fountain that has living water. एक ऐसा सोता जिसमें जीवन का जल है। In John chapter 4, Jesus had an encounter with the Samaritan woman. यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में यीशु की भेंट एक सामरी स्त्री के साथ होती है। He said to her in verses 13 and 14, 13 और 14 पद में वो उससे कहता है, Everyone who drinks this water will thirst again, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him become in him a spring of water welling up to eternal life. जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। And this is precisely the 5th secret of positive living. और यही सकारात्मक जीवन जीने का 5वां रहस्य है। Discovering and using the real fountain of youth. जवानी के असल सोते को खोजना और इस्तेमाल करना। What I have been emphasizing in this series of messages is the distinction between positive living and positive thinking. इस संदेश श्रृंखला में जिस बात पर मैं जोर देता आ रहा हूं वो है सकारात्मक जीवन और सकारात्मक सोच के बीच की भिन्नता। We have seen how positive thinking is temporary at best and is dependent on external circumstances. हमने देखा कि कैसे सकारात्मक सोच अस्थायी रूप से तो उत्तम होती है और ये बाहरी परिस्थितियों पर आधारित है, while positive living is permanent and springs from inside of you. जबकि सकारात्मक जीवन स्थायी है और ये आपके अंदर से बहता है। Positive living is an inner power that does not deny the challenges of life. सकारात्मक जीवन एक अंदरूनी शक्ति है जो जीवन की चुनौतियों से भागती नहीं है। It makes you victorious over them so that you rise above them. ये आपको उन पर विजय देती है ताकि आप उनसे ऊपर उठ सके। I want you to turn with me, please,
in your Bible to 2 Corinthians chapter 4. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर अपनी बाइबल में से कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 4 अध्याय को खोलें। Look at verse 7. 7 पद को देखिए। But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से ठहरे। Verse 16 says, 16 पद कहता है, Therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। My listening friend, I want to tell you two things that you will find in 2 Corinthians chapter 4 about the real fountain of youth. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपको 2 ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो आप जवानी के असल सोते के बारे में 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय में पाते हैं। The first is how to get it, पहली है कि इसे प्राप्त कैसे किया जाए, and the second is how to appropriate it and revel in its power. और दूसरी है कि इसे उपयुक्त बनाकर इसकी शक्ति का आनंद कैसे लिया जाए। How do you get the real spiritual fountain of youth? आप जवानी के आत्मिक सोते को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? Jesus said in John chapter 4 that he is the one who gives it to you. यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में यीशु ने कहा कि केवल वही है जो आपको ये दे सकता है। Without Jesus giving it to you, it is impossible for you to receive it. जब तक यीशु आपको इसे ना दे, आपके लिए इसे प्राप्त करना असंभव है। And Jesus will give it to you whenever you ask for it. और जब भी आप यीशु से मांगेंगे वो आपको देगा। How do you get it? आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं? According to 2 Corinthians chapter 3 verse 18 through 4 verse 6, you receive it by gazing at the face of Jesus. कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 3 अध्याय के 18 पद से लेकर 4 अध्याय के 6 पद के अनुसार आप इसे यीशु के चेहरे को निहारने के द्वारा पाते हैं। Look at chapter 3 verse 18. 3 अध्याय के 18 पद को देखिए। And we who with unveiling faces all reflect the Lord's glory, and being transformed into his likeness with ever increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का तेज इस प्रकार प्रतिबिंबित होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो हम प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। Jesus and Jesus alone is the full manifestation of God. यीशु और केवल यीशु ही परमेश्वर का पूर्ण प्रकटीकरण है। And only when you look at the face of Jesus will you get all of God. और जब आप यीशु के चेहरे को निहारते हैं केवल तभी आप पूर्ण परमेश्वर को देख पाते हैं। Verse 18 again said, 18 पद फिर से कहता है, when you look at the face of Jesus, he transforms you. जब तुम यीशु के चेहरे को निहारते हो वो तुम्हें बदल देता है। Your dead spirit becomes revived and transformed by his spirit. आपकी मृत आत्मा उसके आत्मा के द्वारा पुनः जीवित हो और परिवर्तित हो जाती है। Your life goes from despondency and resignation to rejuvenation and optimism. आपका जीवन निराशा और पराजय से निकलकर नएपन और आशावादिता में प्रवेश कर जाता है। Your life will be transformed from deadly fate to continuous faith. आपका जीवन घातक भाग्य से निकलकर निरंतर विश्वास में पहुंच जाता है। But not only that, but in chapter 4 verse 1, Paul said परंतु केवल इतना ही नहीं, 4 अध्याय के 1 पद में पौलुस कहता है that the real fountain of youth will strengthen you. कि जवानी का असली सोता तुम्हें सामर्थी बनाएगा। Therefore, since we have this ministry, we do not lose heart. इसलिए जबकि हमें ये सेवा मिली है, हम हियाव नहीं खोते। The real fountain of youth will keep on giving you strength. जवानी का असली सोता आपको सामर्थ्य देता जाएगा। Not only that, but in chapter 4 verse 2, Paul said केवल इतना ही नहीं, परंतु 4 अध्याय के 2 पद में पौलुस कहता है that the real fountain of youth will give you purity. कि जवानी का असली सोता तुम्हें शुद्ध भी करेगा। Purity of motive, उद्देश्य की शुद्धता, purity of speech, वाणी की शुद्धता, purity of intention, इरादों में शुद्धता, purity of heart. हृदय की शुद्धता। But not only that, परंतु केवल इतना ही नहीं, in chapter 4 verse 3 and 4, Paul said 4 अध्याय के 3 और 4 पद में पौलुस ने कहा that when you gaze at the face of Jesus
and he gives you the fountain of youth, you become a privileged person. कि जब आप यीशु के चेहरे को निहारते हैं और वो आपको जीवन का सोता देता है तो आप एक विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति बन जाते हैं। Now, my listening friend, I want you to listen very carefully. अब मेरे श्रोता मित्र, मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। Not everyone who claims to be a religious person has the spiritual fountain of youth. हर किसी के पास जो धार्मिक व्यक्ति होने का दावा करता है जवानी का आत्मिक सोता नहीं है। Just because someone is a member of a religious community, it does not mean that he or she has the fountain of youth. मात्र इसलिए कि एक व्यक्ति किसी धार्मिक समुदाय का सदस्य है, इसका ये अर्थ नहीं है कि उसके पास जवानी का सोता है। Why do I say this? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? Because not everyone is willing to obey the conditions for the gift of the real fountain of youth. क्योंकि हर कोई जवानी के असली सोते के वरदान की शर्तों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। Some want to do it their way. कुछ इसे अपने तरीके से करना चाहते हैं, Others want to modify God's way. कुछ और परमेश्वर के तरीके में सुधार करना चाहते हैं। And the problem is that Satan deludes some people into thinking that they can have the spiritual fountain of youth without accepting the conditions that go with the gift. और समस्या ये है कि शैतान कुछ लोगों को बहका देता है कि वो ये सोचने लगते हैं कि वो बिना उन शर्तों को स्वीकार किए जो जवानी के आत्मिक सोते के साथ आती हैं, इसे प्राप्त कर सकते हैं। Verse 4 says, 4 पद कहता है, the God of this age, meaning Satan, has blinded them. इस युग के ईश्वर ने अर्थात शैतान ने उन्हें अंधे कर दिया है। Satan has created a system that panders to people's whims and desires. शैतान ने ऐसी प्रणाली विकसित की है जो लोगों की इच्छाओं और मन की लहरों को और उकसाती है। And he tries to convince them that they can have God's gift of the fountain of youth and live their way. और वो उन्हें ये यकीन दिलाने का प्रयत्न करता है कि वो परमेश्वर का जवानी के सोते के वरदान को प्राप्त करके फिर अपनी मर्जी से जी सकते हैं। But in chapter 4 verse 6 Paul said that only Jesus can give it to you. परंतु 4 अध्याय के 6 पद में पौलुस ने कहा कि केवल यीशु ही इसे आपको दे सकता है। Your efforts and hard work will not get it for you. आपके प्रयत्नों और कड़े परिश्रम से आप इसे नहीं पा सकते। Your good deeds and giving to charity won't get it for you. आपके अच्छे कामों और भलाई के कामों में दान देने से आप इसे नहीं पा सकते। Only the God who said, let there be light, and there was light, only he can give it to you. केवल वो परमेश्वर जिसने कहा ज्योति हो जाए और ज्योति हो गई, केवल वही इसे आपको दे सकता है। So today you can ask him for it if you don't have it. तो यदि ये आपके पास नहीं है तो आप आज ही इसे उससे मांग सकते हैं। Accept the conditions of humbling yourself before him. अपने आप को उसके सन्मुख दीन करने की शर्तों को स्वीकार करें। It is a gift and he is willing to give it to you. ये एक वरदान है और वो इसे आपको देने के लिए तैयार है। You get the spiritual fountain of youth by gazing at the face of Jesus. आप यीशु के चेहरे को निहारने के द्वारा जवानी के उस आत्मिक सोते को पाते हैं। And that will empower positive living. और ये सकारात्मक जीवन के लिए आपको सामर्थ्य देगा। And that will empower positive living. और ये सकारात्मक जीवन के लिए सामर्थ्य देगा। Secondly, Paul tells us about its power. दूसरी बात, पौलुस हमें इसकी शक्ति के बारे में बताता है। The question is, how do we appropriate that power? प्रश्न ये है कि हम उस शक्ति को उपयुक्त कैसे बनाते हैं। Look at verse 7. 7 पद को देखिए। But we have this treasure in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से ठहरे। There is a saying that goes something like this. एक कहावत है जो इस प्रकार से है, You cannot judge a book by its cover. आप पुस्तक को बाहर से देखकर उसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। It means that sometimes what we see on the outside does not reflect what is on the inside. इसका अर्थ है कि कई बार जो हम बाहर से देखते हैं वो ये नहीं दिखाता कि उसके अंदर क्या है। We judge people by their appearances. हम लोगों के बाहरी रूप से उनके प्रति धारणा बना लेते हैं। But God tells us not to judge by appearances. परंतु परमेश्वर हमसे कहता है कि हम रूप देखकर न्याय ना करें।
The outside of the container will not tell us what's inside of it. डिब्बे का बाहरी रूप हमें नहीं बता सकता कि उसके अंदर क्या है। The Apostle Paul was under ferocious attack by his enemies, whom he calls false apostles. प्रेरित पौलुस पर उसके शत्रु भीषण प्रहार कर रहे थे, जिन्हें वो झूठे प्रेरित कहता है। Those false apostles were attacking him relentlessly. वो झूठे प्रेरित निरंतर उस पर प्रहार कर रहे थे। When they could not undermine the inner fountain of youth that God gave Paul, जब वो जवानी के उस अंदरूनी सोते को खत्म नहीं कर सके जो परमेश्वर ने पौलुस को दिया था, they resorted to attacking Paul for his personal appearances. तो उन्होंने उसके व्यक्तिगत रूप को लेकर उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। They said he is unimpressive. उन्होंने कहा वो प्रभावशाली नहीं है, He is unattractive and does not speak well. वो आकर्षक नहीं है और बोलने में भी अच्छा नहीं है। But when you have the real fountain of youth within you, परंतु जब आपके अंदर जवानी का असली सोता होता है, this criticism will be like water falling on a duck's back. तो ऐसी आलोचना बत्तख पर पानी गिरने के समान होती है। It just rolls away. ये फिसलती जाती है, Because Paul had learned to revel in the power of the fountain of youth, he had the power of positive living. क्योंकि पौलुस ने जवानी के सोते की शक्ति में प्रसन्न रहना सीख लिया था, इसलिए उसके पास सकारात्मक जीवन जीने की शक्ति थी। Paul did not argue with his critics. पौलुस ने अपने आलोचकों के साथ वाद विवाद नहीं किया। Instead, Paul agreed with them. इसके बजाय पौलुस उनके साथ सहमत हो गया। He said to them, forget about the container उसने उनसे कहा, डिब्बे को भूल जाओ and look at the priceless treasure that is inside the container. और उस बहुमूल्य खजाने को देखो जो डिब्बे के अंदर है। Those shallow people to whom appearances were everything, वो खोखले लोग जिनके लिए बाहरी रूप ही सब कुछ था, they did not have the most important thing, उनके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं थी, which is the power of the real fountain of youth. जो है जवानी के असली सोते की शक्ति। Where did Paul get his concept of the clay jars? पौलुस ने मिट्टी के बर्तनों का ये विचार कहां से पाया? In the ancient days, people put their most valuable treasures in clay pots and hid them. प्राचीन दिनों में लोग अपने सबसे कीमती धन को मिट्टी के बर्तनों में डालकर छिपाते थे। These clay pots were cheap, breakable, and replaceable. ये मिट्टी के बर्तन सस्ते थे, टूट सकते थे और बदले जा सकते थे। But they used them to store very valuable things. परंतु वो इनका इस्तेमाल बेशकीमती चीजें रखने के लिए करते थे। In fact, the Dead Sea Scrolls were discovered stored in a clay pot in a cave near Qumran. बल्कि मृत सागर के लेख कुमरान के निकट की एक गुफा में एक मिट्टी के बर्तन में रखे हुए ही मिले थे। But clay pots also were used to ignoble everyday use such as human waste. परंतु मिट्टी के बर्तन प्रतिदिन के मानवीय इस्तेमाल में भी प्रयोग किए जाते थे। The same pots were used for valuable things and distasteful things. वही बर्तन कीमती चीजों के लिए और बेस्वाद चीजों के लिए भी प्रयोग किए जाते थे। The clay pot had no intrinsic value. मिट्टी के बर्तनों का कोई स्वाभाविक मूल्य नहीं था। The only worth came from what was on the inside of them. मूल्य केवल उसी चीज का था जो उनके अंदर रखी जाती थी। Paul is saying that his value and our value is not in the clay pot, पौलुस कह रहा है कि उसका और हमारा मूल्य मिट्टी के बर्तन में नहीं है, but what is inside that clay pot. परंतु उसमें है जो मिट्टी के बर्तन के अंदर है। Paul was saying to his critics, पौलुस अपने आलोचकों से कह रहा था, my value is not in my outward appearance, मेरा मूल्य मेरे बाहरी रूप में नहीं है, but it is in the one who owns me. परंतु उसमें है जो मेरा स्वामी है। And my listening friend, when you have the real fountain of youth on the inside of you, और मेरे श्रोता मित्र, जब जवानी का असली सोता आपके अंदर होता है, you have an incredible value. तो आपका मूल्य अविश्वसनीय होता है। By using frail, weak, and inadequate people, God is making it clear that the power is not in the clay pot. निर्बल, कमजोर और अयोग्य लोगों का इस्तेमाल करके परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करता है कि शक्ति मिट्टी के बर्तन में नहीं है, but in what the clay pot contains. परंतु उसमें है जो मिट्टी के बर्तन के अंदर है। The power is not in who I am, शक्ति इसमें नहीं है कि मैं क्या हूं, but in whose I am. परंतु उसमें है जिसमें मैं हूं।
The power is not in what I can and cannot do, शक्ति इसमें नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता, but in the one who can do all things through me. परंतु शक्ति उसमें है जो मेरे द्वारा सब कुछ कर सकता है। No wonder people are confused and defensive all the time. कोई आश्चर्य नहीं कि लोग हमेशा सुरक्षात्मक और उलझन में हैं। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? Because they have convinced themselves that the power is in the clay pot. क्योंकि उन्होंने अपने आप को ये यकीन दिला दिया है कि शक्ति मिट्टी के बर्तन में है And not in the treasure that's inside the clay pot. और उस धन में नहीं जो उसके अंदर है। No wonder people are negative and harsh on themselves and others. कोई आश्चर्य नहीं कि लोग अपने प्रति और दूसरों के प्रति कठोर हैं। They have focused on the frame of the fountain of youth, उन्होंने जवानी के सोते के ढांचे पर ध्यान लगाया हुआ है, not on the real living water that's in the fountain. न कि उस असली जीवन जल पर जो सोते के भीतर है। Paul allowed that fountain inside of him to empower him to positive living in the midst of tough times. पौलुस ने अपने अंदर के सोते को अनुमति दी कि ये उसे उसके कठिन समयों में भी सकारात्मक जीवन जीने की सामर्थ्य दे। And Paul knew some very tough times. और पौलुस ने कुछ बहुत ही कठिन समयों का अनुभव किया था। And Paul knew that no one can stand the onslaught of such continuous pressure without knowing how to appropriate the power of the real fountain of youth. और पौलुस जानता था कि बिना ये जाने कि जवानी के असली सोते को उपयुक्त कैसे बनाया जाता है, कोई भी ऐसे निरंतर दबाव के हमलों के सामने खड़ा नहीं रह सकता। My listening friend, listen to this because I'm about to conclude. मेरे श्रोता मित्र, इसे सुने क्योंकि मैं समाप्त करने जा रहा हूं। Some of you may be saying, आप में से कई ये कह रहे होंगे, I have always been a religious person. मैं हमेशा से ही एक धार्मिक व्यक्ति रहा हूं, I believe in God, मैं परमेश्वर में भरोसा रखता हूं, but I don't think I have received the gift of the real fountain of youth. परंतु मुझे नहीं लगता कि मैंने जवानी के असली सोते के वरदान को प्राप्त किया है। My listening friend, you can do that today. मेरे श्रोता मित्र, आप आज ही ऐसा कर सकते हैं। Or some of you may be saying, या आप में से कुछ शायद ये कह रहे होंगे, I know that I have received that real fountain of living water, मैं जानता हूं कि मैंने उस जीवित जल के असली सोते को पा लिया है, but I have never known how to appropriate its power. परंतु मैं कभी ये नहीं जान पाया कि इसकी शक्ति को उपयुक्त कैसे बनाया जाए। I have let criticism from many years ago still hurt me today. मैंने बहुत सालों पहले की आलोचना को आज भी अपनी पीड़ा बनाए रखा है, And my life is ineffective because of that. और इस वजह से मेरा जीवन निष्प्रभाव है। Today you can confidently say with the Apostle Paul, आज आप विश्वास के साथ पौलुस से मिलकर कह सकते हैं, it is not the clay pot. ये मिट्टी के बर्तन की बात नहीं है, It is not the container, ये डिब्बे की बात नहीं है, but it is the power of that which is inside of me that matters. परंतु महत्वपूर्ण उसकी शक्ति है जो मेरे अंदर है। And please tune in next time as we continue to learn the secrets of positive living. और कृपया अगली बार भी सुने जब हम सकारात्मक जीवन के रहस्यों को सीखना जारी रखेंगे। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीषों की कामना करता हूँ।